السلام علیکم، کیسے ہوں؟ سب سب کیسے ہوں گے؟ اللہ سب کیسے رکھے. ہم کھڑے اپنے باغ کے تقریباً جو جنوبی سائڈ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو مالی ہے یہاں پہ گوڈی کر رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں گھاس کی، دیکھیں یہ گھاس کا جو نام ہے سو ساگا بھی کہتے ہیں. یا یہ زیادہ تر جو بھینس ہوتی ہیں وہ زیادہ بہت کھاتی ہیں اس کو. مچھلی بھی بہت کھاتی ہے، بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی، یہ اس گھاس کو بہت زیادہ کھاتی ہیں. تو شاہ صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک تو ہوتا کیوں باغ میں، کیونکہ ہم تو یہاں پہ ساگر کا جو بیج ہوتا ہے وہ تو نہیں ڈالتے، تو یہ ہوتا کیوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اس کو صفائی کروا کیوں رہے ہیں، کیونکہ یہ فائدہ مند ہوتی ہے، جانور وغیرہ کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، تو اس کو نکلوا کیوں رہے ہیں. آئیے پوچھتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں صفائی بھی کر رہے ہیں، دیکھیں ساتھ ساتھ جڑوں سے بھی اس گھاس کو جو ہے نکال بھی رہا ہے. دیکھیں ہمارا مالی دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں زیادہ کال نہ ہوئے کچھ، دیکھیں نکال بھی رہا ہے. دیکھیں ساتھ جڑ سے نکال رہے ہیں. دیکھیں ہاتھ استعمال کریں تو ایک کاٹ رکھ پیچھے کاٹ جائیں، ایک ہاتھ نہ مار کاٹ نہ سوال ہے مطلب رکھنا دیا. تو شاہ صاحب سے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ اس کو نکلوا کیوں رہے ہیں اصل میں، اس کو پھر نکلوا کے پھر یہاں پہ کیوں ڈال رہے ہیں، سوال یہ پوچھتے ہیں. آئیے السلام علیکم. یہ جو ہمارا مالک کر رہا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گھاس نکال رہا ہے جو اس کو ہم یہ جڑی بوٹی جو ہے اس کو ہم اپنا یہ جڑی بوٹی سراکی میں ہمارا ورڈ ہے، اسے صاف بولتے ہیں. یہ اس جگہ ہوتی ہے جو زمین حد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، جہاں سراکی میں بھی صاف بولتے ہیں. یہ وہاں ہوتی ہے جہاں حد سے زیادہ زمین طاقتور ہوتی ہے. آپ کا یاد ہوگا یہاں ہم نے آم کے پتے ڈالے تھے، یہاں سارے پتے تھے، آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہوگا ہماری ویڈیو میں. تو آہستہ آہستہ وہ آم کے پتے تقریباً اس میں مکس ہو گئے ہیں، مٹی بن گئے، کچھ تازے ابھی پتے پڑے ہیں، ساتھ ہی اس کے اوپر یہ بھی صاف ہو گیا ہے. یہ ہمارا مالی جو ابھی نکال رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک دانے کو چن رہا ہے کس طرح. یہ دیکھیں یہ بالکل جڑ سے نکل رہا ہے. مقصد یہ ہے، یہ جو آم کے روٹس ہیں یہ نیچے ہوئے ہیں، اس کی خوراک جو یہ تقسیم کر رہا تھا وہ ابھی ہم جڑ سے نکال رہے ہیں. وہ ساری خوراک یہ آم کے روٹس لیں گے. آم کے روٹس جو ہے نا، آپ کو کئی دفعہ ہم نے بتایا جہاں تک آم کا گھیرا ہوتا ہے وہاں تک ہوتے ہیں. تو یہ یہاں آم کے روٹس ہیں، آم کے وہ خوراک لے رہے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات، یہ ہمارا مالی یہ رمبے سے، کسی سے یا اور اوزار سے بھی یہ صفائی کر سکتا تھا، یہ گوڈی کر سکتا تھا، لیکن ہم نے کہا ہمارا جتنا ٹائم لگ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، یہ آپ نے ہاتھ سے نکالنا ہے. جب یہ ہاتھ سے یہ کھینچ رہا ہے، ابھی یہ آپ کے سامنے میں نے مثال دی ہے، جب ہم اسے نکالیں گے تو یہ کیا کرے گا، یہ کیا مسئلہ ہوگا. یہ زمین جس کو ہم دھرتی ماں بولتے ہیں، اس کو آرام سکون آئے گا اس پر. جیسے آدمی بچے پر ماں غدگی کرتی ہے، اس کو ہنساتی ہے، یہ بھی اس کا ایک زمین ہماری دھرتی ماں کو سکون ملتا ہے جب یہ ایسا ایسا یہ جڑی بوٹی نکالی جاتی ہے. بعض لوگ، بعض ہمارے دوست، بعض ہمارے حضرات، ہمارے باغبان، وہ کیا کام کرتے ہیں، اس پر سپرے کی صورت میں زہر پھینک دیتے ہیں. وہ ان کا
क्या होता है वो क्या कहते हैं, उनका जवाब ये होता है उनका, वो ये इसमें जवाब देते हैं कि ये दवाई या जहर इस पर रिएक्ट नहीं करते ज़मीन पर। हालांकि वो जो केचुआ निकलता है, सांपा निकलता है, उसकी खास दुश्मन है। दूसरे नंबर पर ये भी आपको मालूम है, उस पर कोई ना कोई ज़मीन पर रिएक्ट ज़रूर होता है, चाहे जैसी भी कमज़ोर दवाई क्यों ना हो। तो ये उनकी गलत फहमी है। वो तो सिर्फ इसलिए सुस्ती, जैसे सुस्ती को कह लें, जैसे ये हमारे हुकूमत बरेलर मुर्गी वाले हुकूमती हैं, जैसे वो सुस्ती करते हैं, बैठे वहाँ पर हैं, बच्चे मुजफ्फरगढ़ कैनाल में डूब रहे हैं, खानदान के खानदान मर गए हैं, उनको क्या पता। उनके गिर्द ऐसा एक हिसार है चमचे गिरों का, वो जो उनको हर बात पर ऐसे पता नहीं कैसे मशहूर रहते हैं, सारे चमचे गिर, उठागिर, उनके सास, उनके बहर उनको नहीं निकलने देते। वो अपनी उनकी अक्ल सोच काम छोड़ गए, क्योंकि तो वो पागल है। उनके साथ चमचे कड़छों की एक जमात होती है, एक क्लास होती है, एक लोग होते हैं। तो वो फील्ड में हैं, उनको पता चले काम चले। इसी तरह हमारे जो बागबान हजरात हैं, बाग लेते हैं, उनके हिसार इर्द गिर्द ये चमचे कड़चे जो दवाइयाँ बेचते हैं, वो उनकी वो चापलूसी करते हैं, आते हैं, उनको कोई ना कोई गिफ्ट चीज़ दे देते हैं, कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं, ये कहते हैं, बस उनकी चापलूसी करते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट की चमचे कट्छे रखे हुए हैं, इस तरह ज़मींदारों ने भी रखे हुए हैं। वो उनकी चमचेगिरी करते हैं, उनको फिर क्या करते हैं, कहते हैं जहर फेंको जान छुड़ाओ। ये डिफ़िकल्ट मुश्किल काम है, क्योंकि इस पर टाइम लगता है। जिस तरह हम ये देख रहे हैं, हमारा ये सारा बाग में हमने किस तरह ये खाद की सूरत में, एक घास की सूरत में एक खाद, हमारी जैनवन खाद, नेचुरल खाद बनी हुई है। ये एक टाइम लगा है, वक्त लगा है, लेकिन चीज़ तो नेचुरल है। हमने लोगों को एक ओरिजिनल चीज़ दे रहे हैं, ताकि वो ये चीज़ हमारा आम खाकर वो कुछ ना कोई सुकून उनको मिले, उनको बीमार ना हो, उनको राहत मिले, सुकून मिले, बीमारी से बच जाएं, बजाय वो स्प्रे वाला खाएं, आम खादों वाला खाएं, केमी वाला खाएं, जिससे वो अस्पताल भर जाएं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, ये जैनवन खाद बना रहे हैं। ये सारी आपके सामने जैनवन बनी हुई है, ये देख रहे हैं, ये सारी जैनवन खाद बनी हुई है। ये इस तरीके से ये हम यहाँ पर खाद बिछा देंगे, ये खाद की सूरत में हमारी आ रही है। तो हमारे ये आम के रूट यहाँ से खुराक लेंगे, ऊपर वाली खुराक वो आपके सामने बिछी हुई है। ये हमारा माली इस तरह काम कर रहा है। उस तरफ भी आपको दिखाते हैं, सारी ये भी खुश्क हो गया है। ये ये ऐसा ऐसा मिट्टी बन जाएगा, खाद की शेप में आ जाएगा, खाद बन जाएगी और हमारे पौधे को एक नई ज़िंदगी दे देगी। ये है असल खुराक, असल मटेरियल। आम की असल खुराक यही है, बाकी सब खुराकें जो वो हैं वो मसनूई हैं। तो ये है असल चीज़, इस पर फोकस करें, इसको दें। अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखें, जब वो बच्चा पैदाश में था 3 माह या 4 माह के बाद वो साइकिलिंग के तरीके से टांगे मारना शुरू कर देता है, क्या वो उसे दवाइयाँ टांगे मरवा रही, टांगे दवाइयाँ वर्जिश करवा रही होती, वो खुद ब खुद उसका निज़ाम अल्लाह चला रहा होता है। इस तरह ये आप सिस्टम चलाएंगे, मैनुअल सिस्टम चलाएंगे, जैनवन सिस्टम चलाएंगे, नेचुरल सिस्टम चलाएंगे, तो फिर आपकी खुदा भी मदद करेगा। खुद अल्लाह ताला पर भरोसा करो, इन दवाइयों से बचो। आमीन। ये देखें, देखें किस तरह ये खुराक बनी है। और खुद देखें, जैसे चोरी होती है, ज़मीन के लिए चोरी बनी होती है, उस तरह बनी हुई है। हालांकि हमें खर्चा किस चीज़ का करना पड़ा है, मजदूरी का। हमने खर्चा वैसे क्या कहते हैं, अगर खाद के करते फिर स्प्रे का करते, उससे बेहतर था मजदूरी का खर्चा कर देते। कितना फ़ायदा हो जाता, कितना फ़ायदा हो रहा है हमारा। देखें, खुद देखें कि हमारे बाग के कभी भी वारा नहीं करेगा, फल जो है हमेशा उठाएगा, कभी एडिक्टेड नहीं होगा। मतलब फल जो है एक, मतलब ये समझें कि
खाद की इसको कोई ज़रूरत नहीं है हमारे बाग पे, क्योंकि आपको पिछले साल बताया है, पिछला जो सीज़न गुजरा है आम का, उसमें हमने खाद बिल्कुल डाली नहीं है। तकरीबन 1 साल पूरा हो गया, हमने खाद बिल्कुल बाग को दी ही नहीं है। तो ये एक फ़ायदा हुआ है ना हमारा कि खर्चा बच गया है। 2-2.5 लाख का जो खर्चा होता है वो हमारा बच गया है। स्प्रे का सिर्फ 15,000 खर्चा हुआ था, वो भी हमने आपको दिखाया था, क्योंकि यहाँ की जो सिस्टम है, हालत बन चुकी है, सिचुएशन बन चुकी है, तो हमें स्प्रे करनी पड़ गई है बीमारी की वजह से। लेकिन फिर भी देखें कि हम कुछ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे। वो कहते हैं ना कि दुनिया तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुकी है। तो आप ये देखें, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुकी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने दवाएं इस्तेमाल करनी है। जैसे वो कहता है कि कैंसर के पेशेंट बढ़ गए हैं तो उसके लिए जदीद दवाएं आ गई। तो भाई कैंसर का पेशेंट है तो उसके लिए जदीद दवाएं हैं। लाजमी तो नहीं है कि आपने कैंसर का पेशेंट बनना है कि आपने वो जदीद दवाई इस्तेमाल करनी है। नहीं भाई, आप क्यों इस्तेमाल करेंगे जदीद दवाई जब आपको है ही नहीं बीमारी। आप कोशिश करें कि आप बीमार ना हो। इसी तरह ये बाग होता है। सबको पता है एक बाग जो होता है एक बच्चे की तरह, एक छोटा लड़का होता है, जो नया बच्चा पैदा होता है लड़का, उसकी जो खातर तवज्जो की जाती है, उसकी जो परवरिश की जाती है, उसको जो बड़ा किया जाता है, उस इसी तरह ही आम को बड़ा किया जाता है। तो उसको हम इस तरह नहीं कर सकते कि उसको जल्दी बड़ा कर दें, जल्दी मैच्योर कर दें। एक सिस्टम है, उसको चलने दें, वो चल रहा है। एस्टेट सिस्टम वाला सिस्टम भी वही है। तो कुछ लोग नहीं समझते, तो उनकी अपनी बात है। लेकिन असल तरीका जो जो चलेगा आगे जाके भी चलेगा, तो यही तरीका चलेगा। तो ये यहीं तक मिलता है, वीडियो में सब नहीं रहेगा। स्टैंड विद फसीन पसंद जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।